Dear students, myself Dr. Dipti Shrivastava, Associate Professor, Government Nungar College, Bikaner. Today we will discuss on thoracic appendages in insects, the wings, part 2nd. Contents: wing areas, wing coupling and wing modifications. Wing areas. A typical insect wing is triangular with 3 margins and 3 angles. 3 margins are costal or anterior, apical or outer, and third anal or inner margin. 3 angles are humeral angle between body wall and costal margin, second apical or outer angle between costal and apical margin, and third anal angle or torus between apical and anal margin. In this diagram we can see insect wing areas or regions. There are 3 margins: anterior or costal margin, outer or apical margin, and third posterior or anal margin. Simultaneously there are 3 angles: humeral angle, apical angle, and anal angle. The region containing the bulk of the veins in front of the claval furrow is called remigium. The area behind the claval furrow is called clavus, except in hind wings, in which this area is greatly expanded and known as venous. Finally, the jugum is cut off by the jugal fold where this is present. Pterostigma. Pigmented spot present on the anterior margin of the wing is called pterostigma. This is present on both pairs of wings in Odonata and on the forewings of many Hymenoptera, Pseucoptera, Mecoptera, and Neuroptera. In Odonata, it is believed to reduce the wing flutter during gliding and thereby increases the gliding speed. In this diagram we can see margins, 3 margins, 3 angles: costal margin, apical margin, and anal margin. 3 angles: humeral angle, apical angle, and anal angle, and the areas remigium. It is the expanded area of the wing. Second area is clavus, which is separated by remigium through claval fold, and jugum, this is separated by jugal fold. In hind wing, the expanded area between jugum and remigium is known as venous. Now wing coupling. Except dipterans, all other winged insects possess 2 pair of wings. Among them, some have
special adaptations to couple wings together to function as single pair. Of those insects, the aerodynamic efficiency in the flight is improved due to coupling of fore and hind wings. They fly faster than the insects with uncoupled wings. जैसा कि हम जानते हैं, डिप्टेरन्स को छोड़कर सभी दूसरे इंसेक्ट्स में 2 पेयर्स विंग्स होते हैं। इनमें से कुछ इंसेक्ट्स में विंग कपलिंग पाई जाती है। ये एक स्पेशल एडेप्टेशन है जिसके कारण से ये 2 पेयर्स जो विंग्स के हैं वो एक सिंगल पेयर के रूप में काम करते हैं। इन इंसेक्ट्स में इस कपलिंग के कारण एरोडायनेमिक एफिशिएंसी यानी कि वायु गति की क्षमता इम्प्रूव हो जाती है या बढ़ जाती है। ऐसे इंसेक्ट्स जिनमें विंग कपलिंग नहीं पाई जाती उनकी अपेक्षा ऐसे इंसेक्ट्स जिनमें कपलिंग पाई जाती है वो अधिक तेज़ी से फ्लाई करते हैं। The wing coupling apparatus, that is WCA, consists of hooks, CT, spines, lobes and folds displaced along the posterior margin of the forewings and the anterior margin of the hind wings. These structures couple each other during flight and have different shapes in the various groups of Pterygota. Wing coupling apparatus, hooks, CT, spines, lobes तथा फोल्ड्स का बना होता है जो कि फोर विंग्स की पोस्टीरियर मार्जिन तथा हाइंड विंग्स की एंटीरियर मार्जिन पर होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे के साथ कपल करते हैं, फ्लाइट के समय जुड़ जाते हैं और टेरिगोटा इंसेक्ट्स के डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट शेप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ विंग कपलिंग। फर्स्ट, हेम्यूलेट। A row of small hooks is present on the costal margin of the hind wing, which is known as hemuli. These engage the folded posterior edge of forewing. Example, bees. विंग कपलिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप, हेम्यूलेट। हेम्यूलेट में हाइंड विंग की कोस्टल मार्जिन पर स्मॉल हुक्स की एक पंक्ति या एक रो प्रेजेंट होती है। इनको हेम्यूलाई बोलते हैं। ये हेम्यूलाई फोर विंग्स की पोस्टीरियर एड्स से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2 विंग्स दिखाई दे रहे हैं, फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स। हाइंड विंग्स की कोस्टल मार्जिन यानी कि एंटीरियर मार्जिन पर हुक्स की एक रो दिखाई दे रही है जिनको हेम्यूलाई बोलते हैं। और ऐसे विंग्स जिनमें हेम्यूलाई कपलिंग पाई जाती है उस कपलिंग को हेम्यूलेट विंग कपलिंग बोलते हैं और ये बीज में इस तरह की कपलिंग पाई जाती है। सेकंड, एम्प्लेक्सिफॉर्म विंग कपलिंग। It is the simplest form of wing coupling. A linking structure is absent. Coupling is achieved by broad overlapping of adjacent margins. Example, butterflies. एम्प्लेक्सिफॉर्म ये विंग कपलिंग की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें किसी तरह के लिंकिंग स्ट्रक्चर्स, इस तरह की लिंकिंग संरचनाएं नहीं पाई जाती। इसमें फोर विंग और हाइंड विंग्स की जो सतह हैं, जो मार्जिन्स हैं, पास जो मार्जिन आते हैं, किनारे आते हैं, वो
ओवरलैप करते हैं। इसके कारण से दोनों विंग एक ही सतह के रूप में काम करते हैं और फ्लाइट को इजी बनाते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज में। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं नीचे हाइंड विंग जो है वो इसके फोर लिंक के कारण फोर लिंक उसको ओवरलैप कर रहा है हाइंड विंग को। थर्ड, फ्रीनेट विंग कपलिंग। Hind wing bears near the base of the costal margin a stout bristle called frenulum, which is normally held by a curved process retinaculum arising from the subcostal vein found on the surface of the forewing. Example, fruit sucking moth. इस तरह के विंग कपलिंग में हाइंड विंग की कोस्टल मार्जिन के आधार के पास एक ब्रिस्टल निकलता है। इस ब्रिस्टल को फ्रीन्यूलम बोलते हैं। ये फ्रीन्यूलम फोर विंग की सब कोस्टल वेन से निकलने वाले एक कर्व्ड प्रोसेस से जुड़ जाता है और इस कर्व्ड प्रोसेस को रेटिनेक्युलम बोलते हैं। तो फोर विंग में रेटिनेक्युलम प्रेजेंट है और हाइंड विंग में फ्रीन्यूलम प्रेजेंट है। फ्रीन्यूलम और रेटिनेक्युलम के जुड़ने के कारण फोर विंग और हाइंड विंग एक सरफेस का काम करते हैं और इस तरह से फ्लाइट को इजी बनाते हैं। Now wing modifications. First, sclerotized forewings. विंग्स में कई तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं, रूपांतरण होते हैं। फर्स्ट, स्क्लेरोटाइज्ड फोरविंग्स, यानी कि फोर विंग्स बहुत अधिक स्क्लेरोटाइज्ड हो जाएं। तो ये किस में इस तरह के विंग्स पाए जाते हैं? टैगमीना, ऑर्थोप्टेरा एंड डर्मेप्टेरा में, हेमिलिट्रा, हेमिप्टेरा एंड हिट्रोप्टेरा में, एंड इलिट्रा, कॉलियोप्टेरा में। तो यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत अधिक स्क्लेरोटाइज्ड अवस्था को दिखाते हैं। फिर विंग रिडक्शन का मतलब कमी होना, विंग्स की संख्या में कमी। हेल्टर्स, डिप्टेरा में हेल्टर्स पाए जाते हैं। एक्ट एज बैलेंसर्स ड्यूरिंग फ्लाइट, ये फ्लाइट के समय संतुलन बनाने का काम करते हैं। एंड थर्ड, एप्टीरस, ए का मतलब एब्सेंट, टीर का मतलब विंग्स, यानी कि विंग्स अगर अनुपस्थित हों। फ्लाइज, डर्मेप्टेरा, थाइजेन्यूरा, इनमें विंग्स अनुपस्थित होते हैं। एप्टेरिगोट्स हैं ये। और ब्रैचिप्टेरस, गैरिड्स, ऑर्थोप्टेरा, इनमें विंग्स या तो बहुत छोटे होते हैं या रिड्यूस्ड होते हैं। देखिए विंग के मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं। इलिट्रा क्या है? इलिट्रा हार्ड स्क्लेरोटाइज्ड फ्रंट विंग्स दैट सर्व एज प्रोटेक्टिव कवर्स फॉर मेम्ब्रेनस हाइंड विंग्स। ये हार्ड और स्क्लेरोटाइज्ड फ्रंट विंग्स हैं जो कि मेम्ब्रेनस हाइंड विंग के प्रोटेक्शन का काम करते हैं या उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में काम करते हैं। इनमें फ्रंट विंग्स ज़्यादा हार्ड होते हैं और ये हाइंड विंग्स जो कि मेम्ब्रेनस होते हैं उनको ढक लेते हैं या उनकी रक्षा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, कॉलियोप्टेरा एंड
Dermaptera. Second, hem elytra. Front wings that are leathery or parchment-like at the base and membranous near the tip. Hem elytra, इनमें फ्रंट विंग्स आधार पर लेदरी या पर्चमेंट लाइक यानी कि चमड़े जैसे या चर्म समान होते हैं और टिप पर या शीर्ष पर मेम्ब्रेनस झिल्ली नुमा होते हैं. एग्जाम्पल हेमिप्टेरा एंड हिट्रोप्टेरा. टैगमीना. Front wings that are completely leathery or parchment-like in texture. टैगमीना वो विंग्स हैं जो कि completely leathery या चमड़े की तरह चर्म समान होते हैं. तो ये यहाँ पर जो 4 विंग्स हैं वो पूरे के पूरे चमड़े के समान या लेदरी हैं. तो ऐसे विंग्स को टैगमीना बोलते हैं. एग्जाम्पल ऑर्थोप्टेरा, ब्लैटोडिया, मैंटोडिया. हेल्टर्स. क्या हैं हेल्टर्स? दीज आर स्मॉल क्लब लाइक हाइंड विंग्स दैट सर्व एज गायरोस्कोपिक स्टेबलाइजर्स ड्यूरिंग फ्लाइट. ये छोटे क्लब लाइक हाइंड विंग्स हैं, पश्च पंख हैं, जो कि फ्लाइट के दौरान घूर्णिकीय स्टेबलाइजर्स का काम करते हैं. एग्जाम्पल डिप्टेरा. नेक्स्ट, फ्रिंज्ड विंग्स. These are slender front and hind wings with long fringes of hair. Fringed wings, इनमें फोर विंग और हाइंड विंग दोनों पतले होते हैं और जो कि लंबे, काफ़ी लंबे हेयर्स से ढके रहते हैं या इनमें हेयर काफ़ी लंबे साइज के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल थाइजेनोप्टेरा. हेयरी विंग्स. फ्रंट एंड हाइंड विंग्स क्लॉथ विद सीटी. हेयरी विंग्स, इनमें फोर विंग्स और हाइंड विंग्स सीटी या महीन हेयर्स जैसी संरचनाएं उनसे ढके रहते हैं. एग्जाम्पल ट्राइकोप्टेरा. नेक्स्ट, स्केली विंग्स. फ्रंट एंड हाइंड विंग्स कवर्ड विद फ्लैटेंड सीटी और स्केल्स. फ्रंट और हाइंड विंग्स फ्लैटेंड सीटी या स्केल से कवर्ड रहते हैं, ढके रहते हैं. एग्जाम्पल लेपिडोप्टेरा. Hemuli. Tiny hooks or on hind wing that hold front and hind wings together. Hemuli, ये छोटे हुक्स होते हैं जो कि हाइंड विंग पर प्रेजेंट होते हैं. ये फ्रंट और हाइंड विंग्स को एक साथ होल्ड करने का काम करते हैं. एग्जाम्पल हाइमेनोप्टेरा. फ्रेन्यूलम. ब्रिस्टल नियर बेस ऑफ हाइंड विंग दैट होल्ड्स फ्रंट एंड हाइंड विंग्स टुगेदर. हाइंड विंग के आधार के समीप ब्रिस्टल जैसी संरचना प्रेजेंट होती है जिसे फ्रेन्यूलम बोलते हैं. ये फ्रंट और हाइंड विंग्स को एक साथ होल्ड करने का काम करते हैं. एग्जाम्पल लेपिडोप्टेरा. यहाँ देखिए ये डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं और उनके
ये डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं। यहाँ पर ये कॉलियोप्टेरन इंसेक्ट है, बीटल है। इसमें आप देखिए ऊपर की जो फोर विंग्स हैं वो काफ़ी मोटे स्क्लेरोटाइज्ड हैं, जो कि हाइंड विंग्स को मेम्ब्रेनस हैं, जो उनको कवर करने का काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा इस तरह के बीटल्स को, जब ये उड़ते हैं तब इनके नीचे से ये हाइंड विंग्स जो हैं वो उनके लिए फ़्लाइट करते हैं, जबकि इलिट्रा जो है वो फ्लाइट का काम नहीं करते, केवल इनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करते हैं। ये देखिए हैम इलिट्रा, इसमें बेस वाला जो पार्ट है विंग का वो लेदरी है, हाईली स्क्लेरोटाइज्ड है। फिर यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं ऑर्थोप्टेरा के विंग्स। फिर ये डिप्टेरा के विंग्स, हेल्टर्स, यानी कि हाइंड विंग्स जो हैं वो एकदम छोटे हैं, ठूंठ की तरह। यहाँ पर देखिए आप, हाइंड विंग्स एकदम छोटे ठूंठ की भांति दिखाई दे रहे हैं। फिर ये फ्रिंज्ड विंग्स हैं, हाइंड और फोर विंग्स दोनों सिलेंडर हैं, और वहाँ पर लंबे लंबे हेयर्स दिख रहे हैं दोनों पर, जिनको फ्रिंजेस बोलते हैं। ये देखिए थाइजोनोप्टेरा, सो ये ट्राइकोप्टेरा में ये हेयर्स हैं विंग्स पर। फिर लेपिडोप्टेरा में देखिए विंग्स पर स्केल्स दिखाई दे रहे हैं। कभी आपने किसी बटरफ्लाई को देखा हो और उसको अगर छुआ हो तो आप देखेंगे कि आपकी फिंगर्स पर एकदम पतले पतले स्केल्स चिपक जाते हैं, क्योंकि इनके विंग्स पर पूरी जो विंग्स की सरफेस है वो स्केल से ढकी रहती है। फिर ये देखिए हाइमेनोप्टेरा, इसमें फोर विंग और हाइंड विंग के बीच में हुक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हेम्यूलाई। इसके कारण से ये दोनों विंग्स एक ही सरफेस की तरह काम करते हैं। और लास्ट में ये देखिए लेपिडोप्टेरा का मौत, इसमें ये ब्रिस्टल की तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि हाइंड विंग से निकलकर आगे जुड़ जाता है फोर विंग की पोस्टल मार्जिन से। तो ये जो स्ट्रक्चर है फ्रीनुलम कहलाता है। इस तरह से डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं इंसेक्ट्स के विंग्स में। तो आज हमने विंग्स के डिफरेंट एरियाज़, उनके एंगल्स, उनके मार्जिन्स, विंग कपलिंग और उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।